Assalamu alaikum. Welcome to the Chaar Payi podcast, a completely new, ambitious podcast which has started starring two youngsters from Karachi who ever dreamed to make it in this podcasting world. I think I might be screaming too hard into the mic. You might be. पहला podcaster guys, you should give us like leeway थोड़ी सी. ये तो है. Anyways, I am Shehzain Ahmad Basha. I'm a musician. I study in a really good art school, which I'm not gonna say. Reveal हो जाएगा बाद में. Figure it out अगर कराची में रहे तो. But क्या बोलते हैं? Yeah. So that's me and my guest. Hey guys, my name's Ammar. I study. The fuck. Very good. So I study in a medical uni. I'm a fourth year student. There's really no artistic experience in my portfolio, but yeah. So if you think about it, then I have the most dangerous industry to pick, and this guy has the most stable like line to pick. So obviously this is still the most unsafe. नहीं. अच्छा तो familial उस पे आओ अगर नहीं आप किसी की खतना करना शुरू करी आपने और कट गई गलती से तो अगर ये मैं बताऊं ये मैंने खुद काट के बनाए तुम इतनी प्रिसीजन से कर सकते हो. हाँ मुझे खतना बहुत प्रिसीजन से करना आती है. तो सही है सर तुम्हारी वो के व्हाट डू दे टीच यू इन मेडिकल यूनी खतना स्पेशलिस्ट. हाँ 5 सालों से खतना करना मेरा पहले मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था. हाँ पहले मैं ऑब्जर्व कर रहा था खतना कैसे हुआ कुछ ऐसा था कि एक दफ़ा जो था ना वो एक सर्जन कर रहा था खतना लेकिन साथ जो था ना उसने काट दिया. उसके बाद जो था वो रेट पड़ गया था पूरे स्कूल के ऊपर. हुआ ये था सर. हाँ फिर जो था वो पूरा एक बैच हमारा जो था वो रिबेलियस होके जो था वो उठा था. उसको एक मशहूर नाम दिया गया है कि खतना रेवोल्यूशन के नाम से. Isn't that like a डांस का गेम नहीं होता है जिसमें तुम कदम रखते हो एरोज आते हैं लेकिन उसमें you have to cut the right. It's the perfect rhythm. नीचे से होकर ऊपर से काटना होता है. Exactly. हाँ. You think this is like a good thing कि first episode में we start with a Khatna story? I think this sets the tone for our podcast very good, I think. Okay, anyways. So, also we are from a really nice organization which I personally have started called Geek Haven. And me too. We're partners in that, obviously. Me and him started Geek Haven. So we are the founders. And the CEO, partnership, of Geek Haven. So if you've ever seen Geek Haven, then it is us. Yeah. Know the face. और कोई नहीं था साथ में हमारे सिर्फ हम दोनों थे. खैर आफ्टर स्टार्टिंग द स्मॉल बिजनेस we've gotten quite experience in like the public platform का पूरा scenario. So we were like क्यों ना podcast यार. हाँ. So but like in all seriousness this whole thing started from like that every single guy who sits with a group of friends और फ्राइज खाते हुए बोलता है भाई यार कुछ करना है यार पॉडकास्ट बनाते यार बहुत लोग सुनेंगे यार. हम बातें ऐसी इंटरेस्टिंग करते हैं ना डायरेक्ट दिल पे लगेंगी लोगों के. यार देखो मैं पहली बात करेंगे क्रिस्टोफर नोलन. सही है. दूसरी बात करेंगे नीचा की फ्रेडरिक नीचा. सही है मेरा फेवरेट फिलोसोफर. दूसरा कान्ये वेस्ट. सही है. So eventually this went into us actually starting one क्योंकि I put my foot down and was like oh shit ये अब कर रहे हैं हम. सही है. The plan was from a really long time back when we were in college. We were like 4 friends who were sitting ऐसे ही साथ बैठे हुए थे and we were just discussing like stories सुना रहे थे एक दूसरे को. तो one of our friends he went like okay
So like this is like in KFC और हम सब like after college we're all sitting और like it goes from जिनों की बातें हो रही हैं और फिर उसके बाद like पूरा हम लोग सोच रहे हैं कि Higgs boson particle क्या था, like we're talking like the most philosophical, छोटी सी like spiritual से scientific हर चीज पे आ गए ना. फिर उसके बाद like we're talking about 2012 में like दुनिया जब खत्म होने वाली थी, we were all like यार क्या मसले होने वाले थे हमारे, shit like that. And then one of our friends, our dearest friend Usman, he says कि 2012 में बिकॉज मेरी मासी को लग रहा था कि दुनिया खत्म हो जाएगी, वो काम छोड़ के भाग गई अपना. एंड देन आई वाज लाइक यू नो व्हाट, दिस इज इट, दिस इज where we begin. This is our origin story. we need to start a podcast now. So essentially that was how many, like 6-7 years back. Yeah, probably. So 6 years back. around 6 years back we were like okay, so yeah, that's it. Started off from that. और तब 4 लोग थे. एंड देन उसके बाद आई वाज लाइक I weighed my options and I weighed how many mics I can get from my salary. And then it was 2. So I was like, Chaar Payi podcast नाम है. लेकिन है सिर्फ the name is actually a really intelligent play on words, क्योंकि it was supposed to be चार भाई पॉडकास्ट एंड चार पाई. However, 2 भाई है यहाँ पे और 4 पाई है. चार पाई भी जगह ही 2 भाइयों की थी यार क्या करें यार, 4 पाई में 2 भाई फिट आ सकते हैं, तो 4 पाई डबल सवारी में भी 2 ही. मैंने दरअसल मैंने ब्रांडिंग कर ली थी. खैर क्या बोलते हैं, so that's how चार पाई started. And poor Usman, rest in peace. May God rest his soul. The poor Masi. The poor Masi. She died in 2020. And poor Usman, may his soul rest in peace. Usman, don't comment in the video. I will think that it is supernatural if you do so. So that's kind of how we started this whole thing. And तुम्हारी क्या राय है इसमें? हाँ तो दानियल शेख भाई. यार मेरा नाम है सरमद इस्माइल. सही है. एंड आई रियली लाइक टू टॉक अबाउट जिन की कहानियाँ, क्योंकि व्हाट एल्स डू देसी पॉडकास्ट ऑफर. एग्जैक्टली सही है. एंटाइसिंग. जिन की कहानियाँ नंबर 1. सही है. बाइकिया राइडर्स नंबर 2. बाइकिया राइडर्स नंबर 2. सही है. नंबर 3, आई विल टेक लाइक अ कॉलर, मुझे कुछ बोलेगा आगे कि भाई देखो मेरी सास ने ना ये मसला कर दिया है. आलिम ऑनलाइन चल रहा है यहाँ पर. तो मैं बताऊंगा यार देखो आपकी सास है ना गलत है. सही है. एक्चुअली आई थिंक आपको शादी करनी नहीं चाहिए थी. सही है. तो फिर आई थिंक है ना मैं ऐसी गाइडेंस दे सकता हूँ आप सबको. तो दैट इज व्हाई आई स्टार्टेड दिस पॉडकास्ट. I think in all seriousness, essentially it is ke at the end of the day we all get to take away something from this. Yeah, that's pretty much it. Good night guys. चलो हो गया हमारा. सही है guys, this was Chaar Payi podcast. No, like I was saying कि essentially sure we had this idea in the back burner for the longest time, lekin it all started when I was in the middle of Ramzan, and I like to do Ramzan on the hardest difficulty. Do you think I'm gonna get like lynched? Okay, khair. So I did this thing where I was like, I have a really long drive to my university. और जब मैं रमज़ान में जा रहा था तो फिर आई चोज टू नॉट लिसन टू सॉन्ग्स इन द स्पिरिट ऑफ द होली मंथ ऑफ रमज़ान. एंड पाकिस्तान का नेशनल एंथम शुरू हो गया. आई ब्लीड ग्रीन से. खैर तो इन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान during the month of Ramadan, I did this amazing thing.
I was like यार गाने नहीं सुनने मैं ना cold turkey I'll go to my university in this hour long drive and I'll just not listen to anything. And obviously जितने dopamine deprived मेरा दिमाग था उस वक्त मैंने बोल दिया कुछ तो चाहिए, so I resorted to my other thing that I like to listen to, which is podcasts. And then I realized कि the only thing that was out there in Pakistani podcast was like यार मैं सोच रहा हूँ बिटकॉइन में घुस जाते हैं यार वो ज़रा किसी पॉलिटिकल पार्टी के बंदे को बुलाओ, उससे बैठ के ज़रा क्वेश्चंस करते हैं, बस सवाल कराची का हाल है ना, ये कैसे हुआ ऐसे, इतने गड्ढे हो गए हैं यार, इतने गड्ढे हो गए हैं, आप बाइकिया पे बैठो तो टट्टे संभाल have you noticed how like we've built an instinct? सही है. मेरे साथ कभी होता है कि मैं आंखें बंद किया होता हूँ, आई एम लाइक रेस्टिंग राइट, और मेरी एक सिक्स्थ सेंस होती है कि नहीं गड्ढा आ रहा है अभी बाइकिया में, और मैं जैसे क्लेंच करता हूँ ना या खुदारा मसल्स जाग जाते हैं एकदम से, ऐसा लगता है कोई 6-7 मसल वहाँ पैदा हो गए, क्योंकि नहीं होते वहाँ पे मसल आ जाते हैं. तुम डॉक्टर हो? नहीं खतने के स्पेशलिस्ट हो तो तुम्हें पता होगा वहां पे नहीं होते मसल, लेकिन भाई जो जान आती है ना उस वक्त समथिंग इंस्टिंक्चुअल, और फिर हो जाता है यार सीन, लाइक रिट्रैक्ट हो जाते हैं. I am able to gain mastery of myself in that instance. लेकिन delving from Khatna to taking muscles is a very do you think it's a difficult field? तुम्हारी field नहीं है, you don't think you should give your professional opinion? It's not in my ballpark right now. Ballpark? I love this guys. Yeah, I was saying thanks man, cough like more into the mic. So I was saying essentially after that I realized like the closest thing I could get to something which sounded like a conversation with my friend, जो मैं बैठ के बात कर रहा हूँ किसी दोस्त से, वो मुझे लगी थी was just like बैंगलोर से बॉयज थे कुछ, and they were talking and they were like the closest thing I got to like some good South Asian content where people were just hanging out. और यार it was so hard to find the rest of my, मैं बताऊंगा नहीं कैसी चीज़ें मैंने सुनी थी the rest of रमज़ान, लेकिन क्या बोलते हैं, shout out Under City podcast, they good nice boys. तुम खतने करते हो लिविंग, डोंट से दिस. उसके ऊपर से I was like okay, now I'm going to do as much as I can. And then I ended up doing this crazy job, content writing for 2 months, and then उसके बाद I was able to salvage enough money to start this up. So every single thing from the branding to the Chaar Payi I bought, to this Panaflex, to these mics, to the camera that this is recording onto, the memory card, and the song jingle you'll hear at the start, and the animations and the name cards that popped up. Every single thing is done by me, and the Spotify subscription that this will be uploaded to where Pakistani people can't reach it will be paid by me. So guys, please support me. subscribe Please subscribe. Please guys, if you hear, तुम लोगों को ऐसा होता है ना, कोई कार तुम लोगों का कोई यूनिवर्सिटी वाला दोस्त बोलता है यार मैंने KDA में अपना फ्रेंच फ्राइज का ठेला खोल लिया है, प्लीज जाके वहां से 1-2 फ्राइज खा लिया करो. यू नीड टू, दिस इज द सेम थिंग, इंटरनेट इज मोर एक्सेसिबल देन KDA में फ्राइज का ठेला. You need to support me right now, please. ये हमारे यहाँ के बर्गर बॉयज का पैशन है, ये हमारे यहाँ का फ्राइज का ठेला है. प्लीज, ये हमारा बर्गर फ्राइज का ठेला है गाइस, प्लीज. यार वहाँ से नीचे पेट्रियन की लिंक लगा देते हैं. पेट्रियन का कौन पैसे देगा? Okay, so speaking of the Khatna revolution, back in my first year of medical school, there was a point in time जब मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे. तो मेरे यूजुअली 4 एग्ज़ाम्स होते हैं, एंड एंड में जो था वो मेरा वाइवा था. तो क्योंकि उस टाइम पे कोविड चल रहा था, तो आई थॉट कि इन्होंने जो है वो
इसेंशली शिफ्ट्स में डिवाइड करा हुआ है हमें कि एक दिन जो है वो शिफ्ट ए लगेगी जिसके अंदर जो है वो 3 पेपर्स होंगे, और एक दिन जो है वो शिफ्ट बी होगी जिसके अंदर रिमेनिंग 2 पेपर्स होंगे। तो मैं लाइक मेरा 8th को एग्ज़ाम था एक, और फिर एक 11th को एग्ज़ाम था। मुझे लगा वही पैटर्न होगा जो हमेशा से था। तो आई जस्ट प्रिपेयर्ड फॉर लाइक 3 पेपर्स, बाकी के 2 जो थे वो मैंने छोड़ दिए क्योंकि ऑब्वियसली दे वर ऑन अ लेटर डेट। खैर मैंने तैयारी सारी कर ली, मैं लेटा सोने के लिए लेटा। तो आई जस्ट ओपन माई मोबाइल टू चेक समथिंग फॉर अ फ्यू सेकंड्स। तो ग्रुप पे जो था वो मैसेज आए हुए थे रिगार्डिंग द अदर 2 पेपर्स। आई डिड नॉट रियलाइज this that one guy जो हमेशा होता है ना, ब्रो मैंने तैयारी नहीं की ब्रो, and this guy aces though, but in this case मैंने एक्चुअली तैयारी नहीं करी थी। खैर मैंने जो बाकी के 3 पेपर भी करे थे वो भी बहुत बुरी तैयारी करी थी। Essentially guys ये हमारे आजकल के डॉक्टर्स हैं guys, WebMD। Essentially फिर मैं जो हूँ वो I say fuck it, अब तो हो गया जो भी होना है, I sleep। सुबह उठता हूँ, सुबह बिल्कुल हबड़ दबड़ में उठता हूँ, इंतहा से ज़्यादा पैनिक कर रहा हूँ, इंतहा से ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है। कुछ भी बस कपड़े वपड़े पहने जो पड़े हुए थे, चप्पल पड़ी हुई थी, 2 पट्टी चप्पल पहनी, तेज़ी से जूते मिल नहीं रहे, बाइक वाला नीचे आया हुआ, मैं बस बैठा एंड आई जस्ट लाइक निकल गया फ़ौरन। 30-40 मिनट के बाद यूनिवर्सिटी पहुंचता हूँ, अंदर जो है वो जमा होते हैं, वाई स्टार्ट होता है। बैठता हूँ, पहली एग्जामिनर होती हैं उनके पास जाके बैठता हूँ, वो कोई इंटेस्टेंस का सवाल पूछती हैं। मैं बस पिक्चर देख रहा हूँ। Did she say hi first? नहीं, वो बस इनरोलमेंट कार्ड लेते हैं, वो बोलते हैं अच्छा चलो ये बताओ, ये पिक्चर देखो, बताओ क्या है ये। बताओ अच्छा मैंने पढ़ा नहीं है। What? हाँ, I just came clean. I just straight up came clean. I was like मैम हुआ कुछ यूँ कि मुझे लगा कि आज जो है वो इसका पेपर ही नहीं है, तो माजरत बहुत ज्यादा। यार आई थिंक क्या ना, आउट ऑफ जो सारी फील्ड है ना उसमें से रूम फॉर एरर सबसे ज्यादा मेडिकल में होता है ना। सो यू शुड गो एंड करी तैयारी, बता दिया मैंने, आई केम क्लीन। लाइक नहीं कर सकता मैं, ये तस्वीर ही नहीं समझ में आ रही, पता नहीं क्या गुजू बना हुआ है। यार इन ऑल फेयरनेस पता है इंटेस्टिन्स कैसे अरेंज करते हैं? इफ इट्स एक्चुअली अ फैक्ट कि अगर आपका पेट कट है और आपके लाइक अंतड़ियां बाहर आ जाएं, अंतड़ियां की एक डिक्शनरी की डेफिनेशन हो, लेट मी ऐड ओवर हियर। खैर तो अगर आपकी अंतड़ियां बाहर आ जाती हैं तो हाउ यू आर सपोज टू फिक्स इट इज के यू जस्ट लाइक पुश इट ऑल बैक इनसाइड द स्टमक एंड यू होप फॉर द बेस्ट। एंड द मिरेकल विद आवर बॉडीज इज के बस हील हो जाता है वो, it just heals automatically back to it's like Robocop। खैर सो वो सवाल पूछती हैं मुझसे, आई कांट आंसर फॉर जैक शर्ट। सब हो जाता है, वो बोलती हैं अच्छा चलो बेटा सही है। माय 5 minutes आर ओवर। मैं दूसरे स्टेशन पे जाता हूँ, वहाँ पे फॉर्चुनेटली इनफ मेरे मतलब का था, मैं सारे सवाल के जवाब दे देता हूँ, सही देता हूँ। फिर तीसरे पे जाता हूँ, वो पूछती हैं, उसमें भी एक आध मिस करता हूँ, हो जाता है। फिर आगे जाता हूँ, एक और आता है, वो पूछती हैं, आई जस्ट कम क्लीन विद हर अगेन। बोलता हूँ नहीं करा मैं डॉक्टर नहीं हूँ, सॉरी मैम नहीं हो पाया, बस ये गलती हो गई, छोटी सी मिस्टेक हो गई। खैर देन आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेशन। अब ये स्टेशन था एक पेपर का जो मैंने बहुत अच्छा करा था ना, तो मुझसे सवाल पूछती हैं वो सारे। पहला सवाल पूछती हैं, मैं खैर पहले सवाल पूछने के बाद मैं सही जवाब देता हूँ, वो दूसरा सवाल पूछती हैं, बड़ा हैरान होती हैं। फिर वो नीचे देखती हैं दोबारा, ओह अच्छा ये बताएं आप ये पहन के क्या आए हैं? मैम चप्पलें मेरी। शी इज चेकिंग यू आउट। ऊपर से नीचे। शी वाज लाइक आज पहना क्या? फिर बोलता हूँ 2 पट्टी की चप्पलें, लाइक चप्पलें पहनी हुई हैं। बोलते हैं ये कोई तरीका है, इस तरीके से देने के लिए आते एग्जाम?
बोला मैम मैं तो बस like एक exam सेकंड देने आया हूँ। एक सेकंड, दिस इज लाइक एक एग्जाम दे रहे हो तुम, दिस इज स्पोकन एंड रिटन बस? हाँ, दिस इज लिटरली स्पोकन। बस मैं बैठूंगा आपके बराबर में 5 मिनट के लिए, द एग्जामिनर विल आस्क मी अ फ्यू क्वेश्चंस एंड देन आई विल मूव ऑन। अच्छा, एंड दिस इज लाइक तुम्हारी खुद की इंटरनल यूनिवर्सिटी के अंदर? हाँ, सही है, एंड हाँ। यूनिवर्सिटी के स्टाफ है, दिस इज लाइक ब्रिटिश It काउंसिल isn't, के it लोग isn't, it essentially isn't। ठीक है, खैर अब मेरा उसके अलावा खुलिया कोई बुरा नहीं था। द ओनली प्रॉब्लम है उसके मैं 2 पट्टी की चप्पल पहना हुआ था। तो मुझसे पूछती हैं बेटा आप कहाँ रहते हो? तो बेटा नॉर्थ में। वो तो अच्छा इलाका है। तो हाँ, तो अच्छा चलिए, आपने सवाल के जवाब तो बिल्कुल सही दिए हैं, लेकिन आइंदा चप्पलें बेहतर पहन कर आइएगा। चप्पलें नॉट की जूते पहन के आए? नहीं, शी एसेंशियली सेड कि आप बेहतर ड्रेसिंग कर आइएगा। खैर आई जस्ट मूव ऑन फ्रॉम दैट। फिर मैं बैठा हुआ होता हूँ, थोड़ी देर बाद जो रूम का इन्विजिलेटर होता है, जो बस स्टेशन को हैंडल कर रहा होता है, प्रोसेस को हैंडल कर रहा होता है, वो आकर मुझे बोलता है बेटा आपने ये क्या पहना हुआ है, कोई तरीका इस तरीके से आने का? तो अच्छा आइंदा नहीं होगा। फिर थोड़ी देर बाद आगे जाके बैठता हूँ, फिर उसको कोई और मेरे ख्याल से जो एग्जामिनर होता है वो उसको बोलता है कि ये बच्चा क्या, इसको जाके डांटो। तो फिर वो दोबारा मेरे पास आता है, दोबारा बोलता है आइंदा नहीं पहन कर आना। तो अच्छा शिट यार। एक सेकंड, यानी मैं उसको अगर बोलता अपने एग्जामिनर को, जो मेरी डॉक्टर साहिबा थी, उनको अगर मैं बोलता नहीं मैं नॉर्थ से नहीं हूँ, मैं लालू खेत से हूँ, तो वो क्या करती? मेरा क्या मार्क्स कैंसिल कर देती, मेरा एग्जाम कैंसिल। लालू खेत से ये सही नहीं लग रहा यार। नहीं 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 नॉर्थ आजमाबाद से 2 पट्टी चप्पल पहनी हुई है, चलो जाने देती हूँ। लालू खेत से नहीं नहीं भाई, नॉट फ्रॉम लालू खेत। मैं बता दूं सही है, ओके, अगर मैं लाइक अपना इलाज करा रहा हूँ या तो अपने बच्चे का अपना खतना करा रहा हूँ, लेट से, क्यों नहीं ऐसा है, क्यों नहीं, स्टिग्मा है भाई ये। अगर मैं हो गया हूँ बड़ा, सही और है, अभी तक नहीं हुआ, बिग बॉय बिग बॉय, और मेरा खतना नहीं हुआ, मैं कराने आ जाऊँ तुम्हारे पास। लेकिन मैं अगर तुमसे पूछूं यार तुम पहन के क्या हो, पहन के हो जाएगा। अपने एग्जाम में पहन के क्या आए थे तुम, सही है, और तुमने बोल दिया अगर 2 पट्टी चप्पल, स्कैल्पेल की जगह मैं चप्पल से काटूंगा। मैंने चप्पल पे आरी ब्लेड लगा दी है, सही है, स्केल वाला होता है ना, वो साइडों में लगाऊंगा, काटना शुरू हो जाऊंगा। खैर, तो essentially you're telling me कि 2 पट्टी चप्पल की वजह से your invigilators almost got you what? बस झाड़ पिलाई, essentially just that। Guys, देखो prejudice होती है यार, ये नहीं किया करो हम लोग को। Never be a लालू खेती। Okay, so here's my question, सही है, I think that not just after hearing this, लेकिन आपको जनरली पता चलता है कि in like certain jobs within Pakistan have this kind of community that they've made, which is kind of prideful, आप कह सकते हैं। Definitely. Yeah, though doctors essentially are like if you're ever like, एक तो अगर आपका कभी भी पाला पड़ा हो इस लाइक जो छोटे छोटे फ्रेंड ग्रुप्स होते हैं डॉक्टर्स के, तो यू विल ऑलवेज नोटिस के दे ऑलवेज वॉक विद अ सेंस ऑफ प्राइड। हमेशा दे आर ऑलवेज कैरिंग देमसेल्व्स विद प्राइड ओवर व्हाट दे डू। मगर इट्स ऑलवेज जिस तरीके का उनका माइंड सेट होता है, एसेंशियली दैट्स ऑलवेज वेरी what do you say, exclusionary? It is like you're not from one of us, bro. It is, magar to a point becomes very, they start to seem very narcissistic. Like agar if you ever open my Twitter, you'll find the most wild shit there. Oh shit, I heard like wasn't there that one guy who got his uska kuch like हुआ ये था, he basically posted about like clearing this really difficult licensing exam, US का basically,
He cleared that, but with that he showed he had like what 1 to 2% attendance, and he was from a really renowned medical school in Punjab. But since उसने ये लिखा हुआ था कि like he barely had any attendance. Punjab and he- represent. Yeah. तो इवेंचुअली आधे से ज़्यादा मैं ट्विटर जो है वो उठकर आ गया एंड दे स्टार्टेड टू harass the fuck out of him. Okay, wait, so you're telling me कि the guy he said कि उसके पास like बहुत low attendance थी, right? Yeah, which is an issue. लेकिन in Pakistan in general it really isn't. Like हमारा Wait a second, what do you mean? Yeah, like you must have like थोड़े से work वाले hours you get like experience on the field, on the job, Definitely, right? मगर यूनिवर्सिटी की अटेंडेंस एंड द हॉस्पिटल का जो अटेंडेंस होती है आपकी दैट डजंट कोरिलेट. जो हॉस्पिटल का सिस्टम होता है दैट्स डिफरेंट एंड द यूनिवर्सिटी का सिस्टम दैट्स वेरी डिफरेंट. Okay. आपकी रोटेशन स्टार्ट हो जाती है सिंस द थर्ड ईयर ऑफ मेडिकल स्कूल. यू डू दैट फॉर 3 years. उसने बेसिकली अपनी यूनिवर्सिटी की दिखाई थी एंड जो हमारी यूनिवर्सिटी एटलीस्ट जो पब्लिक मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके अंदर जो लेवल ऑफ एजुकेशन दिया जाता है वो इट्स नॉट गुड. This is not good. It's not good, straight up. Yeah. So, So you really have to put in the hours on your own to study. आपको essentially जो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई होती है उससे बहुत कम मिलता है. खैर तो उसने जो था वो अपना स्टेप 1 पास करा बहुत अच्छे मार्क्स से एंड ही जस्ट पोस्टेड दैट ऑलमोस्ट नो अटेंडेंस एंड एक तो बहुत बहुत बुरा बैकलैश आया ही आया. बट द प्रॉब्लम वाज कि क्योंकि हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा बैकलैश आ रहा था. Backlash from like medical Twitter. Yeah, basically Mac Twitter and not just Pakistani Mac Twitter. It was essentially the whole of Mac Twitter उसकी उसमें उठ कर आ गया था. Shit like international level पे सब Exactly. लोग उसके पीछे पड़े हैं, क्या जो कर रहे हैं. MDs होते हैं which are जो US असेंबली के जिन्होंने पास करा हुआ होता है Yeah. like US physicians जो होते हैं वो उठकर जो है वो आए and they took notice of it. तो हमारी जो उसकी रेपुटेशन थी वो थोड़ी दलदल में चली गई. लेकिन बंदे ने जो था वो जो भी करा एक हमारे यहाँ से एक बंदा उठा जिसने उसको इतना बुरा हरेस करा कि ही वाज लाइक कि मैं तुम्हारी सारी जो ये सर्टिफिकेशन है US वाली ये ख़त्म करवा दूंगा. मैं हर जगह जाके मेल करूँगा. एंड इवन वेंट ऑन टू हिज इंस्टाग्राम. वहाँ पर उसको इंतहा से ज़्यादा तंग करा. वो बंदा लाइक उसने अपोलोजाइज करना शुरू कर दिया कि नहीं करें मेरे साथ, मैं बस ऐसे ही शौकों में कर रहा था. मैं आपको एक्चुअल प्रूफ दिखा देता हूँ कि मेरी अटेंडेंस है और मैं वार्ड्स भी मैंने अटेंड करी हैं, मैंने हॉस्पिटल में रोटेशंस करी हैं, मेरी अच्छी खासी अटेंडेंस है. मैं बस शौकों में हरकत कर रहा था. बोला नहीं अब तो कुछ नहीं, अब तो मैं करूँगा. The guy is like admitted कि he was lying और वो मजाक में कर रहा है, शौकों में कर रहा था. and उसके बाद the guy is like नहीं I don't care, I want to doing it. तुमने क्यों करा ये? He started to hold a grudge for God knows what reason. यानी कि एक random बंदा इसको ट्विटर के ऊपर मिला जो इस तरीके की हरकत कर रहा था and he decided to just one day hold a grudge against him. What do you think about that? What do you think about like? I think considering he was a doctor उसके हाथ में like बहुत ज़्यादा फारग टाइम था कि वो Do you think he's missing out on his attendance? probably वो कुछ 3 घंटे लेट आता होगा वो. Damn. You know, like considering this, मुझे याद है कि you know as all not all boys सबके पास नहीं होती लक्ष्मण बट जब मैं CIE दे रहा था CIE for originals so CIE जब दे रहा था मैं O levels के I think you know essentially what happened was I
I was really bad at maths. Maybe you can tell that's why I went to a art university. लेकिन essentially that's why I was like दो वजह से मैं ना अपने फाइनेंशियल बोल रहा हूँ एजुकेशनल डिसीजंस ले रहा था. एक तो मुझे सिंधी करनी नहीं थी इसलिए मैंने मैट्रिक डॉज मारा. सही है. फिर मैं गया क्या बोलते हैं ओ लेवल की तरफ. ओ लेवल में कर रहा था. ओ लेवल में मैंने पिक किया क्या बोलते हैं कि लाइक आई रियलाइज्ड कि ओ शिट शज़ैन तो मैथ वाले आदमी नहीं हो. सही है. एंड आफ्टर सीआई मैं लाइक आर्ट की तरफ चले गया. I actually funny enough, I will get to that later, but essentially what happened was that I had like 2 months left till my what do you call it, till the CIEs happened. और मैं मॉक दे चुका था एंड बिकॉज मैं बिल्कुल आगे वाली सीट पे पहुंच गया था एंड माई होल थिंग वाज कि मैं चीट करूँगा. लाइक आई एंडेड अप गेटिंग अ फुल यू एंड माई टीचर वाज लाइक ब्रो कुछ नहीं हो सकता, क्या कर रहे तू. राइट. एंड आई वाज लाइक ओके सही है, नाउ आई नीड टू गेट माय शिट टुगेदर. सो आई डिड द मोस्ट पाकिस्तानी थिंग एवर. आई वाज लाइक ट्यूशन वाली बाजी मोहल्ले में जो रहती है. राइट. सो आई वेंट. Shout out Veena Baji. Thank you. I am here because of you. Shout out you. Speaking of, मैं rapper हूँ guys. And I make music and I hope you guys listen to it. Veena Baji को plug करा. Shout out Veena Baji and my music career. खैर, so I did the मोहल्ले वाली tuition बाजी trick and I put in a lot of work. I actually crammed पूरा syllabus as much as I could and then I did like वो था ना कि like paper से एक दिन पहले आप एक past paper solve कर रहे हो. I got like a good like B to C. I was like सही है यार, सही है, काम कर लेगा. राइट. मैं अकेला था, मैथ्स थ्योरी में पढ़ता था, कभी सॉल्व नहीं करता था. सही है, बुक की तरह बस खोलता था. I was like हाँ भाई ये फॉर्मूला है, x equals to 2 plus y. आंसर पढ़ता था. अबे ये तो बोला था मैंने. Essentially that's how I studied and मुझे पता चल गया था as soon as I opened my maths का पेपर कि oh Shazan you're not passing this. लेकिन ओ लेवल में जितना स्ट्रेस होता है, माय गॉड, आई डोंट थिंक हैव यू एवर लाइक फेल्ट दैट स्ट्रेस एनीवेयर एल्स आफ्टर दैट. What do you mean? Like मेडिकल स्कूल में किसी के खतने के दौरान हैव यू एवर फेल्ट सीआई का स्ट्रेस? The fucking stress at the end of the year before the exams is insane. It's insane. सीआई का तो नहीं, never. अच्छा मेडिकल का. It's like 10 folds. I don't know. आर्ट यूनिवर्सिटी में हम लोग आर्ट बनाते बोलते हैं भाई. इसकी मीनिंग मुझे पता है, तुम्हें समझ में नहीं आएगी. कुछ भी बना दो ऑन सीन है ब्रो. That's how people think art university works. लेकिन it's way harder. It just does that. नहीं, you don't understand. It just does. नहीं. Okay. Well, it also depends on your negotiation skills to sell your shit. सही है. आप आर्टिस्ट नहीं बन रहे होते हैं, आप essentially salesman बन रहे होते हैं. हाँ, you're learning how to that does make sense to an extent. 100%, right? Yeah. Don't you think that's how like doctors also work? हाँ, they do definitely. Right? Like some people like अपने charisma से do become better physicians. Like I've seen psychiatrists जो के like the way they handle their patients, हमेशा उनके patients सिर्फ उन्हीं के पास जाते हैं. Like obviously there are also good physicians, लेकिन I think that's also like a connection thing. That's a really good thing. Like the way that you're able to sell yourself. So bro, I remember this horror story about this guy. He was telling me कि like वो like he had a really good psychiatrist, लेकिन he didn't take her number. सही है, क्योंकि he like institute एक उससे गया था. Right, he went through the what do you call it, एक था basically psychiatrist की एक hub होता है, and then he reached out from there. So he didn't have a number or any contact, and then eventually after he stopped going to her, she shifted like her place of like psychiatry. And क्या बोलते हैं, after that he lost track of her, so he had to find a new psychiatrist, and he went to a dude one time. सही है, एक दफ़ा बंदे के पास गया था, and
the guy says कि he's like, वो अपने पूरे मसले बता रहा है. He's like, मेरे पास like यार ये सीन हो चुका है, ये सीन हो चुका है, ये सीन हो चुका है. And the guy goes like, आप नमाज पढ़ते हैं? And the guy is like, क्या? He was like, आप नमाज पढ़ते हैं क्या? And I was like, नहीं मैं नमाज नहीं पढ़ता. He was like, I think आपको दीन की तरफ देखना चाहिए, आपको शायद जवाब मिले. The problem with that is कि सही है आप तबलीग कर रहे हैं, लेकिन वो बंदा आपके पास तबलीग के लिए नहीं आया है, वो बंदा आपके पास दवाओं के लिए आया है, वो बंदा आपके पास साइकोथेरेपी के लिए आया है. वो तबलीग के लिए उसको जाना होता था, वो इमाम के पास क्यों नहीं चला जाता है? But like चलो आप सही बात बोल रहे होगे टू एन एक्सटेंट, लेकिन स्टिल लाइक आपकी जॉब ये इंटेल नहीं करती है. have you heard about, I mean तुम्हें तो पता होगा, but actually in public hospitals, one of the, like I've heard कि the most common things to like see a patient have is like a really delayed problem that they come to you with, because like Obviously. medication is not like hospitals and medicine is not something that they rely on first. They rely on टोटके first, definitely. and then they rely on medicine. Like मेरी सबसे पहला the patient I saw was somebody जिसको एक बहुत बड़ा सा जो था वो एक cyst निकला था उसके आँख के नीचे ना, like it grew a lot and वो उसकी ट्रीटमेंट के लिए कहीं नहीं गया, सिर्फ एक बाबा के पास गया. It looked like Mad Eye Moody. Not- if his cyst was in another eye. नहीं, it was नीचे बिल्कुल यूं यहाँ से कवर्ड था, बेसिकली निकल यहाँ से रहा था लेकिन it was just यूं करके Like a कवर्ड पूरा. Resident Evil character. हाँ एग्जैक्टली लाइक दोज वो जो लिम्पी से होते थे ना. You're learning to serve this guy and protect him and heal him forever. You're about to swear an oath. नहीं You don't have to swear an oath? नहीं, आई डू हैव टू. Like you can bad mouth him. हाँ Okay, सही है. Sure. लेकिन वो मसला ये था वो बंदा सिर्फ सिंधी बोलता था, तो we had to get somebody who could translate everything for us. तो हमारी ग्रुप के अंदर there was Someone who took metric. हाँ essentially नहीं not really, आप मैट्रिक से कभी भी नहीं सीखते हो. The guy comes in. Anybody that I know जिसने भी मैट्रिक में सिंधी पढ़ी थी उसको नहीं आती है. Guy comes in. मुंजो नालो Shehzain आए. मुंजो नालो बोलड़ो आहे. That's all you In know. part just it's बोलड़ो. Like yeah. So the patient वो हेल्थ केयर सिस्टम सोचा भी नहीं, सीधा किसी बाबा के पास गया, उसने बोला इसको जो है वो फाड़ दो. अच्छा फाड़ दिया उसने, वो फट कर जो है वो पूरा उसने यहाँ पर उसके गड्ढा क्रिएट कर दिया. खैर वहाँ पे पता नहीं इन्फेक्शन हुआ था कोई स्किन का. वो इवेंचुअली फिर आया, वार्ड आया, हमने उससे जानकारी करी, ये पता चला. तो दैट्स इट. मेरा पहला इंटरेक्शन यही हुआ था कि बंदा जब बुरा नतीजा निकला उस चीज़ का तब वो आया एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट, नॉट एज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के पहले ही किसी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन में जाएंगे. So I've like heard that like this happens in rural areas the most, right? Yeah, मगर even in rural areas वहाँ पर like there still are health units thankfully, लेकिन बहुत बुरे होते हैं तो people just straight up avoid them. Yeah. I've seen a drama about that which had really racist accents. Like people trying to do a Like the Pashto one we were accent. doing at the start of the episode. मैं तो कोई accent नहीं किया. क्या बोलते हैं? Yeah, so I was talking about my CIE thing, right? So essentially, I passed my maths. Oh wow, this is a huge way to like come back to. Okay, I passed my maths exams, and how that happened was कि I sat behind this one guy, जिसको मैं पूरे in like my whole time in O levels 3-4 साल जितने मैंने स्पेंड किए थे, मैं उसको रोज लाइक जब भी लंच का टाइम होता मैं जाके
अपने लिए समोसा लेता था, एग रोल लेता था और थैली वाली ड्यू और थैली वाले ड्यू राइट, प्योर पाकिस्तानी एक्सपीरियंस, आई डेफिनेटली मीन बेटर देन लाइक द बेस्ट थिंग अबाउट इट, जब पीने के लिए जाते थे उससे पहले आप देखते थे तो जो बेच रहा हुआ करता था ना वो किसी कोने के अंदर पॉटी कर रहा हुआ करता था नहीं दिस इज योर स्कूल, मेरे पास कभी नहीं हुआ, सही है। वो कराता था, फिर उसी हाथ से सोडा निकालता था। This did not happen to me. ये इसकी खुद सब उसी हाथ से होता था। ये खुद का, ये अम्मार का experience सब ये करते हैं, ये यूनिवर्सल एक्सपीरियंस है ये। मेरे पास पॉटी नहीं करके बना। आओ फिर बनाओ, पॉटी फिर बनाओ। Yes. ड्यू बनती है उससे। This never happened to me. I have no idea what he's talking about. क्या क्रैश आदमी है यार। खैर क्या बोलते हैं shit यार, did that happen to me? वो कर रहा था क्या पीछे? I didn't know. हाँ करते हैं। I saw it first hand. तुम्हारी इंटर्नशिप में यही हुआ था, हॉस्पिटल के कैफे में तुम बैठे थे। हाँ बंदा इसेंशियली इसी वजह से आया था, बोल रहा था कि मुझे पैरासाइट्स हो गए हैं वो खाने के बाद, पीने के बाद। Yeah, was disgusting dog. He has pink eye. खैर मैं अपने एक यूनिवर्सिटी स्कूल के दोस्त को मैंने बहुत सारे समोसे खिलाए थे। एवरी सिंगल लाइक लंच आई वुड फीड हिम लाइक समोसे का आधा, लाइक जो पापड़ी बचती है ना, the best part about it. डिबेटेबल लेकिन जो पापड़ी बचती है मैंने उसको वो खिलाई थी फॉर लाइक I guess the good part of around 2 years, right? And after that, वो मेरे आगे बैठा था and I realized as soon as like I did all the things I could, I was like, तुमने उसको दिया नहीं जब पापड़ी, तो उसके मुंह में राल आने लगी। like I Pavloved him, सही है। मैं उसको जब भी समझता था I would ring a bell, सही है। And उसके बाद like जब क्या बोलते हैं हम लोग CIE में बैठे हुए थे, and then I realized I don't know how to do any of this like math shit. तो फिर जैसे ही इन्विजिलेटर पास किया I was like एहतेशाम I'm about to fail यार, एहतेशाम देखो, I was like एहतेशाम मेरी जिंदगी की बात है यार, प्लीज, राइट? मेरे बीवी बच्चे फ्यूचर में क्या करेंगे? एहतेशाम मेरे छोटे छोटे पेरेंट्स हैं घर पे, एहतेशाम प्लीज, नबील फ्रॉम बलून, एहतेशाम। खैर क्या बोलते हैं, I was like crying, I was like एहतेशाम प्लीज यार, तुम्हें मेरे समोसों की कसम प्लीज, मैंने look at all we've been through, look at all we've been through, एहतेशाम, you need to give me these answers bro. And then उसके बाद as soon as like the invigilators passed, I was like and he would like and then I would like answer I would like अच्छा, the thing was obviously वो कुछ like बता नहीं सकता, solving तो वो बता नहीं सकता, so he was just telling me answers and I was like Sham, thank you, right? But I just wrote down the answers and I hope to God कि the invigilator was like नहीं ये बस पागल है, इसने वो अपने दिमाग में जीनियस है, इतनी जल्दी में सॉल्व करके बस उसके दिमाग में हो रहा था, जो हो रहा था वो सही था, सही है। So at the end I got a C and my padosi, my Beena Baji she was like she saw my grade, it was a C and she was like सही है यार, चलता है। And I always say this, सही है, जो भी निक्सर सीडर से पढ़ा था, right? जो like their whole life KGS and all that shit, right? All of those people landed in my art university too. and like but मैंने भी कुछ नहीं उखाड़ा, मैट्रिक वाले भी IVS में ही आए। oh shit, मैंने आर्ट स्कूल अपना नेम ड्रॉप कर दिया। खैर मैट्रिक वाले भी यही आए हैं and आगा खान बोर्ड वाले भी यही आए हैं। so the real people who won were the आगा खान बोर्ड people, सही है। and that's what I'm saying यार, all of this comes down to one thing, हम लोग सब एक हैं। That's the takeaway from this podcast, हम सब एक हैं guys। क्या बोलते हैं, but before all of that, I was talking about that's crazy man। that reminds me, dude, I think that like one of the times which I got closest to you was the Pak Tour. And I remember when you messed with me
when the group collectively messed with me, they picked on me. But I think what was better than that, okay, सही है. So they even one time मैं बैठ के group का काम कर रहा था, like the mom I am for everyone in the Pak Tour, checking के oh did you get your juice box every time everyone left. I was like prepping for this bonfire, जाके मेहनत कर रहा था, and उसके बाद during that time everyone was like, you know what, हम लोग ऐसा करते हैं कि शज़ैन को है ना बुली करते हैं. Deserved. And during that time what they did was कि they were like, देखो हम सब है ना फेरी मेडोज चढ़ेंगे with our backpacks. So Fairy Meadows is like a really long hike. Like it's essentially अगर किसी ने करीबी नहीं होती है तो उसको it takes around 3.5 hours or something. तो उस पे बैग के साथ चढ़ना, like for somebody who does not do it, it's insane. बहुत स्टैमिना चाहिए होगा आपको करने के लिए. like as a beginner. नहीं ऐसा नहीं होता यार, अगर मैं कोशिश करता मैं कर लेता, कोई बात नहीं. कर तो लेता रात हो जाती. लेकिन करा नहीं यार. इस बात पे आ रहे मैं अभी चले जाऊंगा. सही है, मुझे कोई मैं नहीं हूँ ऐसा सिस्टम नहीं देख रहा. हाँ कर दे. Anyways, तो these guys chose like the guy who had the worst cardio in the group. सही है, इन्होंने बोला यार ये बंदा है ना ये कर लेगा, मुझे इस पे बिलीफ है कि ना ये बंदा बैग के साथ ट्रैक कर लेगा, कोई बात नहीं. लेकिन आई थिंक शज़ैन नहीं करेगा. हाँ सही है. एंड आई लव थिंक वो कर लेता. मुझे अब बुली नहीं करो, इट्स बीन इयर्स. सही है, आई हैव ग्रोन पास्ट इट. सही है. सो eventually I was like अच्छा, like okay, it started getting to my ego because the kind of person I am is the kind of person who would make this podcast. Yeah. सही है. I have skill, determination, ego, discipline, and stoicism, 5% Marcus Aurelius, 20% skill, and 100% reason to remember the body fat. Shit, and 100% reason to remember the name. Care. Anyways, so I was like, it obviously was like, oh shit शज़ैन भाई तेरी मैस्कुलिन ईगो हर्ट हो गई ब्रो, तुम्हारे स्किल लेवल पे ये लोग डाउट कर रहे हैं, आई एम गोना बीट इट यार. एंड देन माय स्टोइसिज्म वाला फेज मेरा चल रहा था उस वक्त. आई वाज लाइक, oh shit dude, I'm gonna like prove them wrong, right? मैंने बहुत सारा ब्लैक क्लोवर देखा हुआ था, एंड आई वांटेड टू सरपास माय लिमिट्स. सही है, राइट देन एंड देयर. He is the Naruto. That's a good comment. Thanks. Anyways, so I was like, I'm gonna surpass my limits here and now. और फिर मैंने a full attempt की थी अपनी to hike the whole thing. And whilst we got there, I almost got to a boiling point, and I almost was on the verge of tears. And these guys were like, हम लोग नहीं कर रहे, we're just pulling your leg. and I was like, these guys had made a bet. They were like, भाई मैं तो इतने 1000 की लगा रहा हूँ, मैं कर लूँगा, शज़ैन नहीं कर पाएगा, we'll give up. And then by the end I was so jaded that these guys were like, हम लोग नहीं कर रहे शज़ैन, we're just pulling your leg. And then I was like, तो पैसे मेरे हुए. These guys were like, हम पैसे नहीं दे रहे, right? And मैं दाल चावल stupid. यार, absolutely fucking stupid. Listen, I was there, I was challenged, and I was going to do it. सही है, I was going to do it. At the end, he just got blue balled. I went outside, मैं दाल चावल खाई अपनी begrudgingly, मैं बाहर गया, मैं बैठा, I was like, shit यार, अगर हम लोग ये हार्डशिप एज अ ग्रुप फेस करते तो कितना कूल होता है यार. we would like all be so excited, and at the end हम लोगों को कितनी fulfillment मिलती. And at the end you guys blue balled me यार, right? We did. But That was amazing. Worst prank, I hate it. During tours we have to stay brotherhood, togetherness. Not really. Bullies yaar. But I think I laughed better at the other bully story that
We did, क्योंकि that didn't happen to me. The Shaquille one. It was Shaquille one. Oh my god. Shaquille one was insane. Okay, what happened? What happened? So we started off कराची से हम लोग निकले रात में. यूजली ट्रेन जो है वो 24 घंटे लेती है. अब हम लोगों ने करा ये था 20 घंटे लेती है. हमने करा ये था कि हमने इकोनॉमी ट्रेन करी थी, विच इज़ वेरी चीप मगर उतनी ही बुरी. मेरे लिए तो कुछ भी नहीं था, मैं तो चिल होकर सो गया था, लेकिन बाकी लोग वर जस्ट ड्राउनिंग इन देयर ओन स्वेट. वो इकोनॉमी ट्रेन, या अल्लाह पता नहीं क्या थी यार उसमें. हम, मेरा एक दोस्त है, सही है, उसका नाम अनुष है, सही है. एंड अनुष इज लाइक अ थिन गाय, राइट? he's good, nice, thin, he's like healthy though, right? That's just his body type, and we're all like okay, size is fine. And Anush for some reason was like, यार मैं ना टॉप बंक पे सोऊंगा, right? तो मैं कट करना पड़ेगा. जिंगल के बैकग्राउंड में डाल देना. Like you scream like a Tom and Jerry character. Saying ke, yeah. So Anush is like the way a train works when you don't have air conditioning in economy class is के जब शदीद गर्मी होती है, which this was जुलाई के दौरान, सही है. It so happened कि जो ट्रेन थी उसका कैबिन है ना तवा बन गया था, और हम सब है ना we were all like we were getting cooked and like full malnourished, like look आ रही थी हमारे ऊपर. And जो अनुष है right, he started sleeping at the top bunk, and I swear कि like तकरीबन he slept there for like around 3 hours, right? हम लोग उसको छोड़ के नहीं आ पाए थे किसी सिंधी टाउन में. रोड़ी में हम लोग उसको छोड़ के आ नहीं पाए. तो रोड़ी में फेंक के आ जाएंगे. हम लोग उसको रोड़ी में फेंक नहीं पाए थे, हम लोगों ने फुल मेहनत की थी. लेकिन क्या बोलते हैं, एसेंशियली क्या होता है कि आफ्टर ही वेंट टू स्लीप वी फॉरगॉट कि अनुष एग्जिस्टेड इन द टॉप बंक. और मैं और मेरे दोस्त जैन हम सब बैठ के वी वर ऑल लिसनिंग टू सॉन्ग्स, राइट? और फिर एकदम से दोपहर का वक्त होता है, फुल पीक गर्मी हो रही है. हम लोग खिड़की पे यूं करके चिपक के चिपकली की तरह बैठे हुए कि थोड़ी सी आवाज़ है. और क्या बोलते हैं, वी लुक अप एंड लाइक अनुष awakens, सही है. He awakens, सही है. And I see like one hand come on top, सही है, जैसे कि वो ना लाश उठ रही है कब्र में से ढांचे का हाथ निकलता है वैसे. अनुष like उसका वो निकलता है, हाथ निकलता है. And I'm like what the fuck's happening, right? And I look at him, और उसकी like लंबे से बाल है. अनुष like यूं हुए में, सही है. अनुष उठता है, right? And then उसके बाद I'm looking at him, I'm like क्या चल रहा है इसके साथ, right? अनुष की लाइक स्किन लाल हुई है और वो चिपकी हुई है उसकी स्केलेटल स्ट्रक्चर से. आई कैन सी हिम, सही, आई कैन सी हिज रिब्स. शर्ट पहना हुआ है, आई कैन सी हिज रिब्स, सही है. लाइक वो पूरा उसका दिख रहा है, राइट? एंड देन ही इज लाइक टाइम क्या हो रहा है, राइट? एंड देन लाइक अनुष तुम सही हो क्या? उसकी चमड़ी चिपकी हुई है उसकी लाइक स्कल से, राइट? एंड लाइक ही इज लाइक टाइम क्या हो रहा है, राइट? And then we're like उसको पानी वानी पिलाया. सही किया. But क्या बोलते हैं, हाँ, you were telling about the train. हाँ, तो ट्रेन से जब हम उतरे तो उतरने से पहले I had to call the driver जो इस्लामाबाद में था कि स्टेशन पर आ गए तो आ जाए आप. तो इस दौरान जो था वो एक दोस्त पूछता है कि लाइक क्या सीन है, लाइक ड्राइवर. हम लोगों में से कभी भी लाइक मेरे ख्याल से 2-3 दोस्तों ने पहले ट्रैवल करा था अप नॉर्थ, लेकिन जो ये दोस्त पूछ रहा था ज़्यादातर को जो था वो एक्सपीरियंस नहीं था. तो पूछता है कि लाइक क्या सीन है, क्या गाड़ी क्या वो ड्रॉप करके चला जाएगा. तो द काइंड ऑफ पर्सन दैट आई एम, मैं बचोदी में बस बोल देता हूँ हाँ वो ड्रॉप करके चला जाएगा, सरकास्टिकली बोल दिया. एंड आई थॉट कि यू वुड लाइक अंडरस्टैंड कि नहीं ऐसा नहीं होगा. मगर एक थॉट कि वो गाड़ी ड्रॉप करके ड्राइवर चला जाएगा. और फिर जो है वो नारायण की तरफ जब हम निकलेंगे तो हम में से कोई एक बंदा चला रहा होगा पहाड़ी इलाकों में भाई गोल ये मैं खैर. तो मैं उसे बोलता हूँ कि सही है, एक काम करो तुम चला लेना. तो हम लोग जो है वो पहली शिफ्ट तुम्हारी है शकील. हाँ, चाबी लो बस शुरू हो जाओ.
4x4 समझो अपनी। हम लोग जो है वो जाते हैं, सॉरी डकार ब्रेक, गाइस ये पाकिस्तानी पॉडकास्ट है, if you didn't know this is how you know. पाकिस्तान represent, I bleed green. सही है। keep doing it like what does that mean? go like you ना, Yeah. go like वो तुम्हारा है भाई, this is the same thing. ये तुम्हारा खुद का एक्सपीरियंस है, सही है। These are your opinions. Mustafa 2.0 was like आई नहीं, ये मेरे पॉडकास्ट में नहीं है आई। essentially I tell our friend शकील कि सही है, तुम जो है वो चला लेना। बोलता है सही है, गुड सीन, मज़ा आएगा। अब मैं ये जो है वो इन द मीन टाइम मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो है वो बन गया है। आई स्टार्ट टू कुक। मैं बल्कि 2 दिन क्या, मैं सारे दोस्तों को एक एक करके कहानी बता देता हूँ कि क्या चल रहा है। मैं बोलता हूँ कि अभी जब बाहर निकलेंगे तो हम लोग ड्राइवर के पास जाते हैं, ड्राइवर आ चुका होता है, सो बोलते हैं यार एक काम करिएगा, ये हमारा दोस्त है, ठीक है, इसको लग रहा है कि गाड़ी जो है ना ये चलाएगा, तो हमारे हाथ चाबी जो है ना सर हमें पकड़ाएं, हम इसको पकड़ाएंगे। वो बंदा विलिंगली आराम से हमारे साथ आ जाता है, वो चाबी देता है, हम उसको पकड़ाते हैं दोस्त को, तो वो जाने लगता है, सीट पे बैठता है, फिर हमसे बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, ड्राइवर पीछे नहीं बैठेगा, वो आगे बैठेगा तुम्हारे साथ, काम करो गोद में बैठेगा। The punchline is कि इवेंचुअली हम लोग जो है वो हाँ कहीं खाने के लिए जाते हैं, which is Howdy's. So shout out to Howdy's for being the worst fucking restaurant that we ever dude, had. worst money, like till the end of the tour, that was the worst amount of like money I spent somewhere. We ate a lot of कढ़ाइयाँ शुरू में, oh my until god, we start to realize कि we're running out of funds. दाल चावल खाना चाहिए था हर जगह, अंडा खाना चाहिए कर दिया था। ओए ओए, मेरा मैगी काम आया था आखिर में। Yours truly, मैगी लवर, मैगी मेकर। मैगी मेकर। ठीक है, तो मेरी चाउडीज हम खाना खा रहे होते, खाना खा के निकल रहे होते हैं, तो मुझे कॉल आती है अपने अब्बू से। अब्बू जो है वो भाई को पकड़ाते हैं, बोलते हैं कुछ इम्पोर्टेंट है। भाई जो होता है वो बेसिकली इज़ लाइक बैकग्राउंड में भाई जो होता है वो इज़ हेल्पिंग आउट ऑन द टूर वाला पूरा सीन ना। तो मैंने जो है वो अपना नंबर बाकी दोस्तों के साथ शेयर करा हुआ होता है, तो भाई का नंबर जो था वो शकील के पास भी था। शकील ने जो था वो अपने वालिद को दिया था। तो भाई बोलता है कि मेरे पास जो थी वो शकील के अब्बू की कॉल आई थी, वो बोल रहे थे कि मेरे बेटे ने जो है वो ज़रा मुझसे लाइसेंस की पिक्चर्स मांगी है। आप जो है वो सर ये लाइसेंस की पिक्चर्स जो है मैं भेज तो रहा हूँ, लेकिन इसे बोलिएगा ये गाड़ी ना चलाए प्लीज। My shit. Oh, that's so sweet, yaar. It is. That's really sweet. Stupid fucking thing though. Shit, yaar. कॉल बंद होती है, मैं बाकी अपने 8 दोस्तों के पास भागता हूँ, सबको न्यूज़ डिलीवर करता हूँ। Everybody just jumps on him, just jumps on him. उस बेचारे का एंड में चिड़िया जैसा मुंह निकल आया, and he just got really sad. We were like, okay. Then we stopped. We eventually stopped. Because like it was getting too much. But my favorite thing was a joke that came out from it. एक दफा जैसे टूर में होती हैं, सफर में कहते हैं कि आपको बंदे की असलियत समझ में आती है, तो obviously like there are some spats, तो ऐसे करके like अम्मार got into an argument with शकील and like कुछ बात हो रही थी and क्या बोलते हैं, we were all sitting in the highest, right? And अम्मार लड़ रहा था and he said हाँ आगे देख गाड़ी आ रही है। I think that's the best rebuttal I've heard. The true Nazimabadi came out of him, and it is. Very alter ego है Nazimabadi. Nazimabadi. That's what he's like when he wakes up in the morning. चिड़चिड़ा सा.
That is Ammar. Man, तुम्हें पता है, like I got reminded from you talking about like जो बंदा party करता है, like okay, do you want to dive into party topic first podcast? I think we've done enough of Khatna and Okay. तू crash नहीं कर दे. ball play jokes. Okay. Now, what do you think is the meaning of life? Well, essentially, since we're talking about adventures and stuff, so The ultimate adventure, the life. ultimate adventure, which is the most chodu topic, Magar, it has inherent meaning. Something that we really love to talk about is the inherent meaning of what we do, the journey we're on, the adventures we're on. So speaking of the adventure that we were just talking about, यार कितना I love it, guys, when he talks about his wanderlust. Safarnama. I think that the meaning of life is to have fun, yaar. It's a really good book by my boy Viktor Frankl. What? Man's Search for Meaning. You say an actual author? Viktor Frankl. My boy Viktor Frankl. Isn't that the guy from like Kalona? जो Kalona. ना? जो Auschwitz survivor है यार. Whoa! On that note, guys. Kalona हो. ये तो है. Auschwitz में तो ये था. I would like to say मेरे पेरेंट्स, मेरे रिश्तेदार, मेरे सिबलिंग्स, कोई ये पॉडकास्ट नहीं देखना प्लीज. सही है guys, that was the first episode of Chaar Payi podcast. I hope you like it, and it's only gonna get better. Please like, comment, share, subscribe. मैं यूट्यूबर हूँ अब. सही. Bye. Watch my listen to my Spotify. Allah Hafiz. Support Geek Haven and Chaar Payi on. Oh yeah, the podcast has an Instagram page. So I supported it all the way there and every single other platform. Thank you. Allah Hafiz, guys. Allah Hafiz. I love you. Mwah. I think we need to add the kiss. I'll see you.